فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ناظرین، مزید اپڈیٹس کے لیے KBN نیوز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ شہر حیدرآباد میں مصروف سڑک پر 2 افراد ڈیلیوری آٹو سے گیس سلنڈر چوری کرتے ہوئے نظر آئے۔ جی ہاں، 2 نامعلوم افراد نے اس جمعہ کی شام سعید آباد کی ایک مصروف سڑک پر ڈیلیوری آٹو ٹرالی سے گھریلو سلنڈر مبینہ طور پر چرا لیا۔ اس واقعے کی ویڈیو کلپ میں اور تصاویروں میں 2 افراد اپنی SUV کار کو LPG سلنڈر لے جانے والی آٹو ٹرالی کے پاس روکتے ہوئے نظر آئے۔ ایک شخص گاڑی سے نیچے اترتا ہے اور ارد گرد کا مشاہدہ کرنے کے بعد دوسرے شخص کو الرٹ کرتا ہے۔ دوسرا پھر تیزی سے گاڑی سے نیچے اترتا ہے اور گیس سلنڈر اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیتا ہے اور دونوں افراد موقع سے فرار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا گیس ایجنسی کو اطلاع ملنے پر سعید آباد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور CCTV فوٹیج کی مدد سے اس کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ NIA نے نظام آباد PFI کیس میں ایک فرار ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جی ہاں، NIA نے نظام آباد PFI کیس میں ایک مفرور چارج شیٹ شدہ ملزم کو گرفتار کیا ہے، جس کی گرفتاری کے لیے 2 لاکھ روپے کا نقد انعام تھا، جس میں کل عدم تنظیم کی طرف سے دہشت گردی اور تشدد کی کارروائیوں کو انجام دینے کے لیے ہندوستان مخالف سازشیں شامل تھی۔ عبدالسمیع ریاستی سیکرٹری برائے PFI کا تلنگانہ نارتھ اس کیس میں گرفتار ہونے والا 15واں ملزم ہے، جو اصل میں تلنگانہ پولیس نے جولائی 2022 میں نظام آباد پولیس اسٹیشن میں درج کیا تھا اور اسی سال اگست میں نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ لہٰذا ایک اہلکار نے بتایا کہ آندھرا پردیش کے کڑپا ضلع کے میڈکور سے انٹیلیجنس کی زیر قیادت آپریشن کے بعد ایک فرار ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ جلد ہی تلنگانہ میں تلنگانہ قائدین کے مجسمے نصب کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ حکومت تلنگانہ کے سرکردہ قائدین کے مجسموں کو حیدرآباد کے ٹینک بند پر نصب کرنے کی تجاویز پر غور کرے گی۔ اس کے علاوہ چکلی یلما اور سردار سروائی پاپنا گوڑ، سابق مرکزی وزیر S جےپال ریڈی اور سابق اسپیکر D سریپدا راؤ کے مجسموں کی تنصیب کا جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے سریپدا راؤ کے 87 یوم پیدائش کی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کابینہ کی ذیلی کمیٹی اس کو تشکیل دے گی اور جلد ہی اس سلسلے میں پالیسی فیصلہ کرے گی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر کرن کمار چمالہ کا KCR کے خلاف نعرے بازی کیس میں بیان ریکارڈ کیا گیا۔ بیگم بازار پولیس نے اس ہفتے کو تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی PCC کے نائب صدر کرن کمار چمالہ کا بیان ریکارڈ کیا ہے، جس میں ان کے خلاف BRS سربراہ کے چندر شیکھر راؤ کے خلاف 3 کاروں پر مخالف نعرے لکھنے کے لیے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بتا دیا جائے کہ انتخابی حکمت عملی کے طور پر یہ کاریں گاندھی بھون کے احاطے میں کھڑی کی گئی تھی، لہٰذا اس سے پہلے کرن کمار کو ایک نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا، جس میں انہیں تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہونے کو کہا گیا تھا تاکہ وہ اس پر اپنا بیان دے سکیں۔ تلنگانہ حکومت 11 مارچ سے اندرما ہاؤسنگ اسکیم کا آغاز کرے گی اور اسی کے تحت ہر اسمبلی حلقے میں 3500 مکانات کو منظوری دی جائے گی۔ ریاستی حکومت 11 مارچ سے اندرما ہاؤسنگ اسکیم کا آغاز کرے گی، جس کے پہلے مرحلے میں ہر اسمبلی حلقے میں 3500 مکانات کو منظوری دی جائے گی۔ اسی سلسلے میں یہ فیصلہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اس ہفتے کو وزیر ریونیو سرینیواس ریڈی اور دیگر سینئر عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کے دوران لیا۔ وزیر اعلیٰ نے افسران کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہدایت دی کہ غریب اور اہل لوگ جن کے پاس مکان نہیں ہیں یہ اسکیم کے تحت مستفید ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اسی کے مطابق ہی طریقہ کار تیار کیا جانا چاہیے اور ان اہل لوگوں کو ترجیح دی جانی چاہیے جنہوں نے پرجا پالنا پروگرام کے دوران اپنے نام درج کرائے تھے۔ لوک سبھا انتخابات 2024 کے پیش نظر بھوجپوری سٹار پون سنگھ اور شتروگھن سنہا لوک سبھا انتخابات میں آمنے سامنے ہوں گے۔ اس ہفتے کو BJP نے لوک سبھا انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کر دی ہے اور یہ فہرست کافی زیر بحث ہے، کیونکہ اس فہرست میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے مغربی بنگال کے آسنسول لوک سبھا سیٹ کے لیے بھوجپوری سٹار پون سنگھ کو ٹکٹ دیا ہے اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ آسنسول سیٹ سے ہی TMC نے لیڈر شتروگھن سنہا کو بھی ٹکٹ دیا ہے، جنہیں بہاری
काबू कहा जाता है और अब इस सीट पर स्टार वॉर की पूरी जंग देखने को मिल रही है। इस पर शत्रुघ्न सिन्हा का पहला रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। समाजवादी पार्टी के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने इस हफ्ते को कहा कि बीजेपी साजिश और झूठ का सहारा लेकर इख्तिदार हासिल करने के लिए बेचैन है। जी हां, समाजवादी पार्टी एसपी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने इस हफ्ते को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि अवाम का बीजेपी पर कोई भरोसा नहीं है। ये साजिशों, धोखे और झूठ की सियासत से भरी हुई है। वो इख्तिदार पर काबिज रहने के लिए जद्दोजहद कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी अपने प्रोपेगेंडे के जरिए लोगों की सोच को आलूदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जैसा कि दाना है वैसा ही गीत का माहौल है। तमाम इदारों और जराए पर आरएसएस के लोगों को रखा जा रहा है। मईशत की हकीकत पर पर्दा डाला जा रहा है और झूठे इदादोशुमार की बुनियाद पर तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का भरम फैलाया जा रहा है। सच तो ये है कि जब से बीजेपी इख्तिदार में आई है, महंगाई, बेरोजगारी और बदउनवानी उरूज पर है। किसानों से किए गए वादों का आखिर क्या हुआ? साथ ही पेपर लीक का खतरनाक खेल नौजवानों को रोजी रोटी से महरूम कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के खुसूसी वजीर पंकज चौधरी ने 7वीं बार एमपी बनने की तैयारी करते हुए महाराजगंज सीट से बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने इस हफ्ते को लोकसभा इंतखाबात के लिए पहली फहरिस्त जारी कर दी है। बीजेपी के मरकजी वजीर मुमलिकत बराए खजाना पंकज चौधरी को महाराजगंज लोकसभा से टिकट मिला है। बता दिया जाए कि काउंसलर से लेकर मरकजी काबीना के रुकन तक पंकज चौधरी ने 6 बार लोकसभा का इलेक्शन जीता है। पहली बार साल 1991 में मरकजी वजीर मुमलिकत बराए खजाना पंकज चौधरी ने महाराजगंज लोकसभा से इलेक्शन जीता था। जिला की सियासत में पंकज चौधरी की काफी मजबूत गिरफ्त है। पिछले कुछ सालों में वो यूपी में कर्मी बिरादरी के बड़े लीडर के तौर पर उभरे हैं। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए खजाना पंकज चौधरी का सियासी चेहरा जिले में एक मुहज्जिब लीडर का है। कर्मी बिरादरी के साथ साथ दीगर बिरादरियों में भी लोग उन्हें एक फ़आल और कारआमद रहनुमा के तौर पर पहचानते हैं। लोकसभा इलेक्शन 2024 के पेश नजर शिवराज सिंह चौहान विदिशा से इलेक्शन लड़ेंगे और साथ ही एमपी में 24 नामों का ऐलान किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपनी पहली फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। मध्य प्रदेश से 24 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें साबिक सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा से इलेक्शन लड़ेंगे। वहीं मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया गोना से इलेक्शन लड़ेंगे। आपको बता दें कि पहली फहरिस्त में मध्य प्रदेश से 24 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, गोना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुरैना से शिवमंगल सिंह तोमर, भंड से सिंधिया रॉय, ग्वालियर से भरत सिंह कुशवाहा, सागर से लता वानखेड़े का नाम शामिल है। मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि कर्नाटक के लोग कांग्रेस की खुशामद की सियासत का खमियाजा भुगत रहे हैं। जी हां, मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि उनकी खुशामद की सियासत का खमियाजा कर्नाटक की आवाम भुगत रही है। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ दिन पहले जब कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार नासिर हुसैन ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी, तो उनके हामियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। उन्होंने कहा कि इसी तरह बेंगलोर में बम धमाके के बाद रियासत के नायब वजीर आला डीके शिव कुमार ने अलग बयान दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के वजीर आला को अपने नायब वजीर आला को ऐसे बयान देने से रोकना चाहिए और तहकीकात का रुख मोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ये मालूम किया जा सके कि क्या कांग्रेस उम्मीदवार की जीत पर लगाए गए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और बेंगलोर बम धमाकों का कोई कनेक्शन था। हिंदुस्तान ने चीन को अपनी ताकत दिखा दी। एटमी और मिसाइल की खेप रोक दी गई, लिहाजा पाकिस्तान ने घबराते हुए हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला। हिंदुस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने चीन से पाकिस्तान जाने वाले जहाज को मुंबई की बंदरगाह पर रोक लिया। हिंदुस्तान का दावा है कि इस जहाज में जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइलों से मुताल्लिक सामान मौजूद है। जहाज को रोके जाने पर पाकिस्तान की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है। पाकिस्तान ने कहा कि उस जहाज में मिसाइल से मुताल्लिक कोई भी मवाद नहीं है। पाकिस्तानी वजारत खारिजा की तर्जुमान ज़हरा बलूच ने कहा कि हिंदुस्तानी मीडिया जहाज के बारे में जिस तरह का दावा कर रहा है उसमें कोई भी सदाकत नहीं है। पाकिस्तान ने एटमी और मिसाइल से मुताल्लिक मवाद रखने के हिंदुस्तानी दावे को भी मुस्तरद कर दिया है। इस हफ्ते को वजारत खारिजा की तर्जुमान ज़हरा बलूच ने अपने बयान में कहा कि हिंदुस्तानी मीडिया को हकायक को गलत तरीके से पेश करने की आदत है। ये कराची की कंपनी में लेथ मशीन की दरामद का एक सादा सा मामला है। कंपनी पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल सनातों को मशीनरी के पुर्जे फराहम करती है। ये आलात वाज़ेह तौर पर पेश
हमेशा वाराना इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं। पाकिस्तान ने कार्रवाई को गैर मुंसिफाना करार दिया। साथ ही पाकिस्तानी तर्जुमान ने कहा कि जहाज के पास जरूरी दस्तावेजात मौजूद हैं जो शफाफ तरीके से मशीन की खरीदारी से मुताल्लिक है। हौजी बागियों के हमले से पहला जहाज बहीरे अहमर में डूब गया, जिसमें भरे केमिकल से समुद्री हयात को खतरा हो सकता है। इसराइल और हमास के दरमियान जंग के आगाज के बाद से ही बहीरे अहमर में बैनुल अक़वामी जहाज रानी के रास्ते से गुजरने वाले तिजारती बहरी जहाजों पर तकरीबन 2 दर्जन हमले हो चुके हैं, जिसमें यमन के हौजी बागी जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में हाल ही में हौजी बागियों ने एक तिजारती जहाज पर हमला किया, जिसके बाद हमले ने जहाज को बहीरे अहमर में ही छोड़ दिया। अब खबर सामने आई है कि हमले के 2 हफ्ते बाद बिलाखिर जहाज बहीरे अहमर में मुकम्मल तौर पर डूब गया है, जिससे समुद्री हयात को खतरा बढ़ गया है। यमन की हुकूमत ने बताया कि रूबीमार हमले के बाद बहीरे अहमर में ये जहाज तैर रहा था। कई दिनों तक उसमें बतदरीज पानी भरने की वजह से वो डूब गया। कहा जाता है कि ये बागी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाला पहला जहाज है। हवा से खाना गिराया जा रहा है। इस तरह गजा के लोगों की मदद की जा रही है जो कि भूख की हालत में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इसराइल और हमास के दरमियान जंग ने गजा में तबाही मचा दी है। इसराइली फौज हमास के ठिकानों पर मुसलसिल हमले कर रही है। इस दौरान कई बेगुनाह लोग भी इन हमलों का निशाना बन रहे हैं। गजा में हर तरफ तबाही मची हुई है, हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए लोग अपने घर बार छोड़कर रिलीफ कैंपों में पनाह ले रहे हैं। अपनी जान बचाने की जद्दोजहद के दरमियान लोगों को खुराक के हुसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे भूख से निढाल नजर आ रहे हैं। दरियासना इसी दौरान अमेरिका ने गजा में इंसानी इमदाद पहुंचाई है। अमेरिकी फौज ने गजा को हवाई जहाज के जरिए खुराक और दीगर जरूरी अशिया फराहम की है। 3 तैयारों से तकरीबन 35,000 से ज्यादा खुराक के पैकेट गजा में गिराए गए। अमेरिका का कहना है कि इसी तरह की मदद मुस्तकबिल में भी फराहम की जाएगी। सहाफियों से बात करते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रमजान शुरू होने तक ये जंग बंद हो जाएगी। IMF की पाकिस्तान के लिए सिफारिशात जो कि नकदी की कमी का शिकार है, उसने महसूलात पैदा करने के लिए टैक्स बढ़ाने की तजवीज पेश की। इजाफी रेवेन्यू हासिल करने के लिए मालियाती बहरान का शिकार पाकिस्तान को बहुत सी सिफारिशात की गई है। इस हफ्ते के रोज IMF ने पाकिस्तान की हुकूमत को टैक्सों में इजाफा, टैक्स स्लैब को कम करने और पेंशनर्स को निजी आजरों के ताउन पर टैक्स छूट खत्म करने जैसे कई इक़दामात करने की सिफारिश की है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR IMF की सिफारिशात मान लेता है तो तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ दुगना हो जाएगा। FBR ने रवा माली साल के पहले 8 महीने जुलाई तक फरवरी में तनख्वाहदार तबके से अब तक 215 अरब पाकिस्तानी रुपये इकट्ठे किए हैं। थाईलैंड के वजीर आजम के साथ CMG चाइना मीडिया ग्रुप का खुसूसी इंटरव्यू। हाल ही में चाइना मीडिया ग्रुप CMG के एक सहाफी ने बैंकॉक में वजीर आजम के दफ्तर में थाई वजीर आजम श्रेता का इंटरव्यू लिया है, जिन्होंने 5 सितंबर 2023 को थाईलैंड की वजीर आजम का ओहदा संभाला था, जिसके एक हफ्ते के बाद 13 सितंबर को उन्होंने अवामी तौर पर ऐलान किया कि थाईलैंड चीनी शहरियों को 6 महीने की वीजे की छूट देगा। इस साल 28 जनवरी को चीन और थाईलैंड ने बैंकॉक में वीजा से इस्तिस्ना के मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसका इतलाक 1 मार्च से शुरू हो गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు
నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।